السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم یہ السلام. آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ خاکسار کو بھی موقع دے رہے ہیں. جہاں تک یادوں کا تعلق ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے وہ کتابیں لکھ سکتا ہے. ابھی شکیل نے بات کی, ہم تو اس کو شکاٹا کہتے تھے کیونکہ میں یہ اس میں ہماری محبت کا اظہار ہے آپس میں. تو کیونکہ ربا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک نام ہوتا تھا, نک نیم. جب تک وہ نہ بولا جب پتہ نہیں چلتا یہ کنسپٹ کس نیم کی بات ہو رہی ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال تو ہم کلاس فیلو تشکیل اور میں ہم 70 سے لے کر مجھے وہاں 74 تک موقع ملا ہے ٹی آئی کالج میں. اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہنگامی کیا لیں کہ ایک تو وہ ابھی پرانا ٹی آئی کالج تھا جو مکمل جماعت کے تسلط میں تھا, جماعت کا اس پہ ہولڈ تھا, اور پھر دوسری طرف آہستہ آہستہ پھر وہ نیشنلائز بھی ہوا انہی دنوں. اس دوران وہ پاکستان میں مطلب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, مشرقی پاکستان اس دوران, اور دوسرے پھر جماعت کے خلاف بھی جو تھا وہ یہ سارے واقعات ہوئے. تو جب ہم کالج میں آئے تو خاکسار کو ڈیبیٹس کا شوق تھا. تو مجھ سے 2 سال سینئر تھے لئیک عابد اور کریم خالد. تو اپنے شاہ صاحب سلطان شاہ صاحب وہ ہوا کرتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹ یونین کے سرپرست. تو لئیک عابد اور کریم خالد کی اپنی ٹیم بن جاتی تھی. میرے ساتھ یہ تھا کہ مجھے کبھی تو خیر میں مقصود الرحمان کو ساتھ لے جاتا تھا, کبھی جدید جلوے کو, اور مبارک عابد صاحب کو بھی دیکھیں تو وہاں ڈیبیٹس میں وہ خاص طور پہ ان کا ایک شعر بہت لگایا کرتے, مجھے یاد ہے, آنسو سے بڑا کوئی مصور نہیں عابد, میں بول رہا ہوں اب, جو خون سے جذبات کی تصویر بنائے. تو یہ بہرحال الحمدللہ اس کو انعامات بھی جیتے سارا کچھ, اور وہ ایک اپنی. پھر اس کے دوران ہم نے روئنگ میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. تو شکیل نے جو بات کی اس کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چودھری صاحب کی ایک اپنی عادت کا. مجھے یاد ہے اسلم صابر صاحب ہمارے ہوا کرتے تھے اس روئنگ ٹیم کے انچارج, اور ہم دارالذکر میں ٹھہرے ہوئے تھے. پنجاب یونیورسٹی کے میچز تھے اور ٹورنامنٹ تھے. تو وہاں مجلس خدام الانبیاء لاہور کے بہت سارے خدام باقاعدہ آئے تھے, کیونکہ انہوں نے بعض ہمارا اصل مقابلہ ہوا کرتا تھا اسلامیہ کالج لاہور کی ٹیم کے ساتھ. کیونکہ انہوں نے ایک سال پہلے یوں کیا کہ وہ یا تو پل سے پتھر نیچے پھینک دیے, اور ایک دفعہ ایک بھینس کو ڈال دیا ٹی آئی کالج کی ٹیم کے سامنے. تو بہرحال تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو تو وہ خدام آئے ہوئے تھے. تو شام کو مجھے یاد ہے کہ دارالذکر پر مجھے پتا چلا کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو میں وہاں پہنچ گیا اور واپس آیا تو رات کے کچھ 10 بج چکے تھے, 10:30. تو بہرحال دارالذکر میں اور مسجد میں عشاء کے بعد فوراً اسٹوڈنٹس نے سونا ہوتا تھا سارا کچھ. تو آگے وہاں پہنچا تو چودھری صاحب نے دیکھ لیا مجھے اور بڑے ناراض ہوئے. میں خاموش, ان کے ساتھ اسلم صابر صاحب بھی تھے. تو جب وہ بات کر چکے سارا کچھ ہوا تو میں نے پیچھے سے ایک کپ نکالا. میں نے عرض کی چور صاحب یہ یوں تھا اور مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اجازت لے سکتا, تو میں جلدی سے وہاں پہنچ گیا. تو مجھے تو اب کالج کا نام بھی یاد نہیں کرتے, ان سرکاری تھا اسلم صابر صاحب کو شاید یاد ہو. تو چور صاحب نے وہ دیکھا کہ تو وہ فوراً ان کی طبیعت بدل گئی, جیسے وہ اب دلاسا اور دینے لگ گئے کہ کوئی میں تم پہ ناراض ہو رہا ہوں اور تم کالج کی نیک نامی کے لیے گئے ہو. تو وہ شکیل کی اس بات سے مجھے یاد ہے کہ چور صاحب کی واقعی یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی بندے کا دل جو ہے اس کو نہیں دکھانا. مجھے نہیں علم کہ چور صاحب نے کبھی کسی کا فائن جو ہے وہ معاف کروانے گیا ہو تو انہوں نے معاف نہ کیا ہو.
इसी तरह फिर वो अपने परवाजी साहब के साथ उर्दू में खाकसार को भी वहाँ मौका मिला, बस में उर्दू में भी काम करने का, और सारा उन दिनों गालबन ये 71 की बात है या 72 की, नासिर काज़िम मरहूम जब फौत हुए तो उसके बाद उसकी वो ओपनिंग उनकी किताब जो बाद उनकी वफात के बाद शाया हुई, उनका मजमूआ कलाम, तो उसकी ओपनिंग भी टीआई कॉलेज में जब हुई तो प्रोफेसर गुलाम जिलानी, असगर वगैरह, जाफी साहब वगैरह सारे आए हुए थे। तो बहरहाल वो भी दिन याद रहते हैं, अदबी हल्के जिस तरह कॉलेज में आया करते थे और कॉलेज का एक नाम था। फिर इसी तरह वो डिनर जब हुआ थे, शकील को भी याद होंगे और भी बाकियों को। एक तो हमारा डिनर होता था डिबेट्स के बाद, और एक डिनर था वो जो बास्केटबॉल के बाद, जिसमें हु एंड हु शामिल होते थे। वो केमिस्ट्री थिएटर में फिर बाद में दरमियान वाले दिन एक बाकायदा महफिल लगा करती थी, और उसमें मुझे याद है ब्रदर्स वगैरह की और दूसरी टीमों के जो लड़के थे वो गाने वगैरह और सारा कुछ एक जरा दिलचस्पी का माहौल पैदा हुआ था। खुद हजरत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मियां ताहिर अहमद साहब हुआ करते थे, तो वो भी तशरीफ लाते थे उसमें, मुझे याद है, खुद मैंने देखा है। हमारा एक ब्रीज से हमारे यहाँ मंडी वाले, तो उनको भी मौका मिलता है थोड़ा सा बात को महसूस करने का। तो ये वो मुख्तलिफ यादें हैं और अभी वाकयात तो इतने ज्यादा हैं कि इंसान अगर उस तरफ चला जाए तो मेरे ख्याल में वो उन्हीं में नहीं कहीं खो जाए। तो इस लिहाज से थोड़ा सा खुद को भी संभालना पड़ता है। तो बाकी जितने प्रोफेसर थे, चौधरी मीरुल्लाह साहब, वो हमारे मियां खुर्शीद अहमद साहब, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। सुल्तान साहब वो हमारे इकोनॉमिक्स के थे। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बहुत कम मैंने पीरियड अटेंड, तो उस लिहाज से ये होता था कि मुझे पता चला कि मुझे इकोनॉमिक सोसाइटी का सदर चुन लिया गया है। तो बहरहाल वो जब उसकी हमने इब्तिदा किया और सारा कुछ किया, तो मिर्जा ताहिर अहमद साहब को हमने बाकायदा बुलाया उस वक्त, और मुझे याद है उस वक्त भी मेरे पास वो मैंने सारी हुजूर की जो तकरीर थी, तकरीबन पौने घंटे की, वो मैंने जिस तरह से जल्दी से नोट कर सकता था उसको नोट किया और सारा कुछ किया। वो पाकिस्तान में नहीं रह गई, लेकिन हजूर ने पौने घंटे में इकोनॉमिक्स पे एक ऐसा दर्स दिया कि जो 2 साल की मतलब बीए की सारी तालीम एक तरफ और वो पौने घंटे का लेक्चर है। मतलब हजूर ने कि किस तरह कौमों में इकोनॉमिक्स का होनी चाहिए, किस तरह पाकिस्तान में बगैर प्लानिंग में, बगैर सोचे समझे, और उसके नुकसानात क्या होते हैं, और सारा कुछ इतने शॉर्ट टाइम में हजूर ने वो पेश की कि इंसान हैरान होता है। और मुझे आज भी उसकी बहुत सारी मसले, एक छोटी बात है, हजूर ने फरमाया उसमें पाकिस्तान की हालत ये है कि जैसे एक पहिया हो, उसको जंग लगाओ, तो जब बंदा इंसान उसको चलाने की कोशिश करता है तो उसको वो चल नहीं सकता, और जब अगर चलता है तो यकदम वो चलता है और इंसान गिर जाता है। फिर हुजूर में चूंकि प्लानिंग कोई स्टैटिस्टिक का वो इंतजाम कोई नहीं, ऐसी चीज नहीं कभी, और उन दिनों में चंद सालों में हुआ था प्याज की कमी होगी, कभी वो प्याज जाया करने पड़े किसानों को। तो हुजूर में कि अब ये होता है कि एक इंसान 1 मीटर या 2 मीटर की दीवार से नीचे छलांग लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको देख रहा हो, लेकिन 2 इंच की जो सीढ़ी है वो उसके अपने मन का तोड़ने के लिए, गर्दन को तोड़ने के लिए काफी है अंधेरे में। तो ये है कि मतलब इंसान अंधेरे में जा रहा है और यकदम थोड़ी सी वो नीचे आ गई है गहराई, 2-3 सेंटीमीटर है, तो इंसान को वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है बनिस्बत उसके कि अगर वो देख कर बाकायदा उसके जिस्म का तनाव, उसका सारी चीज, वो एक दीवार से छलांग लगाता है, हाँ वो 2 मीटर ऊंची है, लेकिन उसको नुकसान नहीं होगा। यही आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का हजूर ने बयान किया कि ये हाल है कि हम अंधों की तरह चल पड़ते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो ये मुख्तलिफ बार आज ये ज़िमनी तौर पे आ गया।
चौधरी मोहम्मद अली साहब की मुझे याद है एक चीज जो बहुत आपकी शख्सियत और आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो अयां होती है। मुझे याद है कि चौधरी साहब उन दिनों में हमें 1-2 हफ्ते के लिए पढ़ा रहे थे इंग्लिश। तो एक दिन क्लास में आए और मशरकी पाकिस्तान की जंग हो रही थी, तो आते फरमाने लगे आज मेरा पढ़ाने ते जी नहीं करता। तो खुद ही कहने लगे पंजाबी च गल्लां करने आ, अंग्रेजी च बोलिए ते इंज लगदा जिवें झूठ बोलदा है बंदा, उर्दू च बोलिए ते इंज लगदा है तकल्लुफ करदा है, ते पंजाबी च कर। तो फिर चौर साहब ने कहा कि मेरा जी करता है अल्लाह ताला करे कि जंग असी जीत जाइए। तो उन दिनों में वो नैसन भट्टी का वो तराना एक बड़ा मशहूर मारे 48 जवानों ने पता नहीं कितने 540 मारे ने इस किस्म का था कि मेरा जी करता है कि अगर हम जीत जाए और इसका जंग जीत जाए तो उसको बुलाया जाए। और खैर वो तो जो भी अल्लाह ताला को मंजूर था, वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो मुझे याद है कि चौधरी साहब ने जब जनरल याहिया ने अपनी तकरीर की और पाकिस्तान की हार और सारा कुछ, तो एक असेंबली हुई, उसमें चौधरी साहब ने एक तकरीर की थी और उसमें आपका एक फिक्रा मुझे आज तक जिंदगी भर नहीं भूला। चौधरी साहब ने फरमाया था कि हमने एक मार का हारा है, हमने जंग नहीं हारी, जंग हम उस दिन हारेंगे जिस दिन इसको भूल जाएंगे। और ये अफसोसनाक बात है कम से कम उन तमाम मुहिब्बे वतन के लिए और टीआई कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कि हम पाकिस्तानी कौम ने एज कौम 1-2 साल के अंदर इस मार के इस एक मार के जो हमने हारा था उसको भूल कर जंग हारा। तो ये मतलब उससे पता चलता है चौधरी साहब की दूरबीनी भी और उनकी मोहब्बत की किस तरह हमारे साथ तरबियत करने की कोशिश की। अल्लाह ताला उन सबको के दर्जात बुलंद करे और जो हयात हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत डाले। मेरे ख्याल में ये बात है। अब सिर्फ एक आखिर में मुझे पिछले परसों चौथ की बात है, वो मैं फरत अब्बास का एक शेर सुना था, गजल थी उसकी, तो उसका मतलब इस तरह था, इससे होता है जाहिर जो हाल दर्द का है, सभी को कोई न कोई वबाल दर्द का है। तो वो बार आज सोचता मैंने कभी कोई ऐसा शायर भी नहीं और शायद जिंदगी में 2-4 नज्म वगैरह या गजल कही हो और अभी इसकी ठीक भी नहीं हुए, लेकिन 1-2 शेर हैं जो आखिर में आपकी खिदमत में कर देता हूं। तो वो चूंकि वो दर्द की बात हो रही थी, फले और फूले ये मेरी दुआ है, फले और फूले ये मेरी दुआ है, वो जख्म दिल जो तेरी अता है, वो जख्म दिल जो तेरी अता है, हुस्न बख्श है राहते भी, हुस्न बख्श है राहते भी, पर निखरना दर्द का सवाल है। वाह जी वाह। हुस्न बख्श है राहते भी, पर निखरना दर्द का सवाल है। तेरा जाना तो जान लेवा था, तेरा जाना तो जान लेवा था, तेरा आना भी खुला, तेरा जाना तो जान लेवा था ही, पर तेरा आना भी एक बला है। मैं तो खाक था सुरैया हो गया, जब से चूमा तेरा नक्शे पा है, जब से चूमा तेरा नक्शे पा है। ये चौधरी साहब का एक शेर था जो ज़हन में आया तो उसकी तरफ थोड़ा सा आया उसी ख्याल को। वहशतों का सहरा दरिया को पी के, वहशतों का सहरा दरिया को पी के अब किनारा निकल गया है। खुशबू बखेरता गया वो फजा में, खुशबू बखेरता गया वो फजा में, वो ख्याल जो तेरी तरफ गया। फले और फूले ये मेरी दुआ है, वो जख्म दिल जो तेरी अता है।
جزاکم اللہ بہت شکریہ.